So, ladies and gentlemen, the stage is all set for the leadership dialogue and the valedictory, which will be conducted together. And I take the pleasure of requesting Dr. Arvind Kumar, President, India Water Foundation, to please join us on stage. May I request him to accompany our esteemed guests? We warmly welcome here in our midst Sri R.P. Singh, National Spokesperson, BJP. It is our pleasure to welcome on stage Sri Rakesh Jain, Akhil Bhartiya Paryavaran Seh Sanyojak, Paryavaran Sanrakshan Gatividhi, Rashtriya Swayamsevak Sangh. We warmly welcome on stage His Holiness Acharya Sri Lokesh Muniji, founder, Ahimsa Vishwa Bharati. And may I also request Dr. Shweta Tyagi, Chief Functionary, India Water Foundation. I'll request all the esteemed dignitaries to please join us on stage. हम मंच पर विराजे सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। देवी और सज्जनों, जैसा कि हमने आपसे बताया कि ये समापन समारोह भी है और लीडरशिप डायलॉग, ये दोनों सेशंस को एक साथ कंबाइन किया गया है। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर अरविंद कुमार, प्रेसिडेंट इंडिया वाटर फाउंडेशन से, कि वे कृपया सभा को संबोधित करें और इस विशेष सत्र और इस 2 दिन के सम्मेलन के बारे में हमसे जानकारी साझा करें। Distinguished guest on His Holiness Sri Lokesh Muniji, Sri R.P. Singh ji, Sri Rakesh ji, and other colleagues on the dais. Friends, past 2 days have been immensely enriching. In his inaugural address, Sri Om Birla ji, Honorable Speaker of Lok Sabha, underscored the importance of global cooperation and sustainable development in addressing the pressing water challenges facing our planet. We are grateful to him for congratulating us for our policy discourse. We were equally honored by the presence of Sri Raj Bhushan Chaudhary ji, Honorable Minister of State, Ministry of Jal Shakti, highlighted the need for integrated water convergence and collaborative action to ensure long-term water security in the face of climate change. As a special address on ESG governance was delivered by Sri Harsh Malhotra ji, Honorable Minister of State for Corporate Affairs and Road Transport and Highways, who rightly emphasized that transversality is essential for addressing the interconnected challenges of water, energy, health, and environment, and that ESG aligned governance can be a powerful instrument for sustainable growth. Another defining moment of this conclave was the Water Transversality Global Award, where 49 outstanding leaders and institutions were honored for their exceptional contribution to sustainability, innovation, and environmental stewardship. Among the distinguished awardees were Sri Devendra Fadnavis, Chief Minister of Maharashtra, Sri Konark Sangma, Chief Minister of Meghalaya, the Rockefeller Foundation, along with many remarkable individuals, institutions, innovators, and media professionals who are driving transformative change in the fields of water management, sustainability, innovation, groundwater governance, and decarbonization. We have noted down the presentation was SEBI would jointly review the ESG guidelines for
future adoption in all states. We have also noted down that the recommendation by DMRC, ILO, ISD, and other various organizations, almost 110 speakers. The fireside dialogue with distinguished leaders such as Sri Satya Tripathi, Special General Secretary, Global Alliance for Sustainable Planet, Sri Amit Kumar Ghosh, Additional Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, and Sri Sampath Kumar, CEO, Meghalaya Basin Development Authority, who provide an opportunity to reflect on the importance of global partnerships and collective action in shaping sustainability transitions. Friends, we conclude this conclave. I believe the conversation we initiated here must translate into action and collaboration, long-term commitment. Our goal should be strengthen partnerships across government, international organization, academia, industry, civil society, so that innovative ideas can evolve into tangible solutions. Let us this conclaves serve as a catalyst for building stronger alliances, promoting responsible governance, encouraging sustainable technologies, and empowering communities together. Let us continue working towards a future where water security, ecological balance, and human well-being go hand. And I thank all your participants, insights, and commitments. I wish, in fact, my colleague, when we give the vote of thanks, will also give some detail also program, and also include the details of this session as well, because a lot of good things are actually included with this session as well. So thank you very much to initiate this session. Thank you. Thank you, Dr. Kumar. Ladies and gentlemen, we have in our midst on the stage today Shri R.P. Singh, National Spokesperson, Bharatiya Janata Party. May I now request the esteemed dignitary to kindly address the august gathering. नमस्कार। मुझे जब फ़ोन आया था मुझे ये नहीं बताया गया था कि मुझे मंच पर आकर बात भी करनी। मैं तो इसलिए आया था कि पर्यावरण पर मेरी चिंता रहती है थोड़ा सा विषय पर, और मुझे लगा कि मैं आज आचार्य मुनि जी को और राकेश जी को सुनने के लिए यहाँ पर रहूँगा तो मुझे कुछ ज्ञानवर्धन मेरा होगा। ये तो रास्ते में जब मैं आ रहा था तो उन्होंने कहा कि आप पहुँचे नहीं, आपने आकर मंच पर बैठना है, तो थोड़ा अटपटा सा था मामला। पर फिर भी मैं एक सिख हूँ, और सिख जो हमारा पंथ है वो सनातनी पंथ है। आप लोग कहेंगे कि ये सिख और सनातनी का पानी से क्या लेना देना। गुरबानी के अंदर हम लोग रोज़ श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो लोग गुरुद्वारे जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, वह दिन में 2 बार अरदास करते हैं। और अरदास में रोज़ आता है पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत। अब इससे बड़ा तो संदेश कोई हो नहीं सकता जल पर्यावरण के लिए, जहाँ हवा के लिए या धरती के लिए। और मेरा मानना है कि सब तीनों आपस में जुड़े हुए विषय हैं। मतलब ये नहीं कि हम कह सकते हम जल पर्यावरण करेंगे तो हम धरती की चिंता नहीं करेंगे, धरती की चिंता करेंगे तो हवा की चिंता नहीं करेंगे। तो गुरु नानक देव जी ने इसको बड़े अच्छे ढंग से दर्ज किया। और वाणी में और भी एक जगह जिक्र आता है, सदे भाई हरियावली जिथे मेरा सदगुरु बया। मतलब यहाँ पे वो सदगुरु जहाँ पर है उसको हरियावली से चिन्हित करते हैं। वो जगह जहाँ पर मेरे सदगुरु हैं वो हरियावली, वहाँ पर हरियावली है, वहाँ पर हरापन है। अब ज़्यादातर तो लोग जब आजकल जो गुरु रहते हैं वो सोना चांदी इस प्रकार से मामला रहता है लोगों का, कईयों का, परंतु वो हरियावली की बात करते थे कि जहाँ मेरे सदगुरु हैं वहाँ पर हरियावली होनी चाहिए। मैं लद्दाख जो राज्य है उसका पार्टी की ओर से काम भी देखता रहा 2008 के अंदर। सन 1992 में मेरा पहली बार लद्दाख जाना हुआ।
उन दिनों में आतंकवाद का जोर था कश्मीर में, तो मुझे अखबार में काम करता था, तो अखबार की ओर से नियुक्त किया गया कि कुछ हिजबुल को लोगों से बात करनी है, कुछ एक विषय है, तो उस विषय में बात करने का। तो वहाँ से मेरी जैसे बात पूरी हुई तो मैंने मन में एक डर था, तो मैंने सबसे पहले जाके पूछा फ्लाइट कहाँ की, बोला लद्दाख की। मैं लद्दाख गया, तो मेरा पहली बार लद्दाख जाना तब हुआ। वहाँ जाकर पत्थर साहब एक गुरुद्वारा है, और एक गुरुद्वारा पत्थर साहब थोड़ा शहर से बाहर है, और एक गुरुद्वारा शहर के बीचों बीच भी है। वहाँ पर एक पेड़ है, और वो कीकड़ का पेड़ भले ज़माने में, मतलब 500 साल 550 साल पहले साहब श्री गुरु नानक देव जी ने वहाँ पर लगाया। मैं इस ढंग से सोचता हूँ कि उनको तब भी ध्यान में था कि लद्दाख में ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि पेड़ लगाया जाए। शहर जो स्थान बाहर है वो है कि एक राक्षस ने पत्थर फेंका, उन्होंने उनकी पीठ पे आकर वो पत्थर पिघल गया, आज भी उस पत्थर पे पीठ का निशान है। परंतु जो शहर के बीचों बीच गुरुद्वारा है वहाँ पर पेड़ उन्होंने लगाया। हम में से कभी हरमंदिर साहब जितने लोग गए होंगे, कभी देखो हरमंदिर साहब में बाबा बुड्ढा जी की बेरी है, और पुरानी बेरियां हैं, 3 बेरियां हैं हरमंदिर साहब की परिक्रमा के अंदर। तो मैंने इसलिए कहा कि जो सनातनी हैं, जो इस देश के संस्कारों में, संस्कृति में विश्वास करता है, वो पर्यावरण से बाहर, वह पेड़ से बाहर, वह पानी से बाहर, वह धरती से बाहर सोच ही नहीं सकता। ये पिछले कुछ सालों में जिसे कहते हैं दोहन इतना ज़्यादा हुआ कि उसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं, उसका नुकसान आज हम भुगत रहे हैं। जहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल है, उसका भी हम थोड़ा खमियाजा आज, ये जो दिल्ली में पोल्यूशन का कारण एक वो भी है कि 34% कारण दिल्ली में पोल्यूशन का गाड़ियाँ हैं। परंतु ठीक है, एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत थी। उसमें जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होगा वैसे वैसे हमको इसकी भी चिंता करने की ज़रूरत होगी कि हम किस प्रकार से एक बैलेंस मेंटेन करके रखें और उस पर फोकस करके करना। मैं एक छोटे से 2 उदाहरण देकर अपने विषय को और बढ़ाता हूँ। जैसे दिल्ली में अगर मुझे अपने यहाँ आना था तो मुझे अपनी गाड़ी निकाल कर आना पड़ा, क्योंकि मुझे ये नहीं था कि मैं अपने घर से निकलूँगा तो मेरे को नियरेस्ट बस स्टॉप तक या नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन तक कौन सी गाड़ी ले जाएगी। और जब मैं यहाँ पर अगर खान मार्केट उतरूँगा तो खान मार्केट से मेरे को यहाँ तक आते हुए क्या वाहन मिलेगा जो मेरे को यहाँ तक ले आएगा, जिसको आजकल हम लोग लास्ट माइल कनेक्टिविटी के नाम से एक शब्द प्रचलित हुआ है। अब जब ये सब हो रहा था, जब पता था कि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, मैं पार्टीबाजी के कारण से नहीं, मैं इस पक्ष से दूर होकर कि पार्टी वजह से दूर होकर, परंतु जब अर्बनाइजेशन बढ़ रहा था, जब गाड़ियों का जोर बढ़ना था, तो उस समय ये भी ज़रूरत थी कि हम चिंता करते कि हम किस प्रकार से लास्ट माइल कनेक्टिविटी बिल्ड करते। अगर मेरे घर पर, और आज आपकी जानकारी दे रहा हूँ, मतलब क्योंकि मैं इन इश्यूज़ को, सब्जेक्ट्स को चेस करता हूँ, समझता हूँ और भागता भी रहता हूँ इनके पीछे पीछे। आज से कोई 1.5-2 साल पहले मैंने मेट्रो में बात करनी शुरू करी। जब हमारी सरकार आई तो अपनी सरकार में दिल्ली में बात करनी शुरू करी। अब मेट्रो लास्ट में कनेक्टिविटी का प्रोसेस शुरू कर, हालांकि बीच बीच में कुछ जगहों पे हम देखते हैं आजकल साइकिल स्टैंड बन गए हैं, हालांकि कोई साइकिल वहाँ से यूज़ नहीं होती। हाँ, बच्चे लोग आजकल इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल जो यूलू की वो यूज़ करते हैं, परंतु लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए कोई व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन का मामला नहीं। परंतु मैं नाम लेकर बताता हूँ, यशपाल मेहता वहाँ पर एक आजकल जनरल मैनेजर, आज कुछ अभी उनकी ट्रांसफ़र हुई है, परंतु लास्ट माइल कनेक्टिविटी के मामले में कि अगर आप घर पे अपने फ़ोन करेंगे तो आपको घर से कोई उठाएगा, आपके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन तक लेकर जाएगा, मेट्रो स्टेशन से जहाँ उतरेंगे वहाँ से कोई 5 किलोमीटर के डिस्टेंस तक आपको छोड़ने की भी कुछ व्यवस्था की चिंता की जा रही है। अगर ऐसा होगा तो मैं ऑब्वियसली अपनी गाड़ी का उपयोग क्यों करूँगा। मेरे पास वाहन होगा, साधन होगा, तो मैं साधन से जाऊँगा जो मेरे को सुविधाजनक हो, और मेट्रो में जाने में सुविधा है। मैं एक उदाहरण और देता हूँ, और आप लोगों को शायद लगेगा कि मेरे को टीवी पे डिबेट्स पे जाना पड़ता है लगातार निरंतर, तो शाम को चैनल्स वाले कहते हैं कि आइए हमारे यहाँ, तो मैं आज भी
मेट्रो गाड़ी यूज़ करता हूँ। अपने घर से गाड़ी उठाता हूँ, मेट्रो स्टेशन पर गाड़ी खड़ी करता हूँ, सेक्टर 16 उतरता हूँ, फिल्म सिटी उतरता हूँ, वहाँ से उतर कर उनकी गाड़ी लेने आती है, फिर मेरे को मेट्रो स्टेशन छोड़ देती है, फिर मैं उस ढंग से कोशिश करता हूँ। परंतु मैं ये मानता हूँ कि आज की तारीख में जितना हमारी लाइफस्टाइल में कंफर्ट आ गया, उसमें हम चाहेंगे कि हमको पूरा एक कनेक्शन हो। मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि पानी की कंजर्वेशन की तभी बात होगी जब आप में वो इनकलकेट होगा कि हमको पर्यावरण की चिंता करनी है। मैं डेटा फिगर्स पे नहीं, मैं तो जीवांत उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे घर में आज भी ब्रश करने के लिए नलका नहीं खोला जाता, पानी की बॉटल्स रखी हुई हैं। जिसने ब्रश करना है, दो लाभ होते हैं। एक तो टैंकी के पानी की सुविधा, पता नहीं कैसा पानी कैसा रहता नहीं क्या नहीं रहता, दिन भर मिट्टी धूल, हालांकि बंद होने के बाद भी फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा मामला गड़बड़ हो सकता है, दिक्कत हो सकती है सेहत के लिए। और दूसरा, पानी बचाने के लिए मेरे और मेरे बच्चों के बाथरूम में पानी की बोतल भर कर रखी जाती है। जब हमने कुल्ला करना होता है, जब हमने ब्रश करना हो, जब कुछ भी करना हो, तो उसी पानी की बोतल को यूज़ करते हैं। ये हम लोगों ने आदत बना ली। घर के अंदर स्नान करने के लिए हम लोग बकेट का इस्तेमाल करते हैं। हमें पता कि एक बाल्टी भर से नहाना है। जब ऊपर से शॉवर खुलता तो ध्यान में नहीं आता कितना पानी इस्तेमाल हुआ कितना नहीं हुआ। पर आज भी मेरे घर पे हर बाथरूम में बकेट और मग्गा है। हम लोग अपनी बाल्टी भरते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा भर सकते हैं, परंतु कोशिश करते हैं बाल्टी भर में स्नान हो। ये आदतें हमको इनकलकेट इसलिए नहीं करे कि कोई पानी हमको कोई पैसा बचाना, इसलिए कि वो आदत पंडित जी अगर गुरबानी पढ़ते हैं, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, तो उसको जीवन में हम लागू कैसे करें, इस पर भी बात होनी चाहिए। मेरी बिटिया वकील है। मैं क्योंकि डिबेट्स में जाता हूँ तो मेरे को पढ़ने के लिए पेपर प्रिंट होकर आते हैं, तो एक साइड प्रिंट होते हैं तो दूसरी साइड का जो मेरे उनके दफ्तर में दूसरी साइड वाले कागज़ उसके दफ्तर में चले जाते हैं, वो प्रिंट लेती है। मैं जब दिल्ली का विधायक था तो मैंने एलजी साहब थे, उनको चिट्ठी लिखी। वो बोले यार कौन सी साइड पढ़नी है? मैं जिस साइड हरा है। दूसरी तरफ वो रिसाइकल पेपर था। मैं अकेला ऐसा विधायक था जो रिसाइकल स्टेशनरी यूज़ करता था, लिफाफे भी रिसाइकल ही बनवाता था। ये इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे कोई अपनी बार तारीफ करनी, ये आदत डालने की बात मैं बार बार उसको दोहरा रहा हूँ कि अगर हम गुरबानी पढ़ते हैं तो गुरबानी को रियल लाइफ में कैसे लागू करें, उसकी भी हमको चिंता करने की ज़रूरत है। आज दिल्ली में कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर में आरओ नहीं होगा। शहरों में लगभग हर जगह है। मैंने तो अभी दिल्ली सरकार से निवेदन किया है कि पीने का पानी आप जितनी मर्जी कोशिश करें, आप कोरोजन से नहीं बचा सकते। मतलब उसमें पाइप के थ्रू जाएगा तो उसमें दिक्कत आएगी और हर घर को आरओ यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। और गरीब से गरीब आदमी भी पीने के पानी के लिए बोतल लेता है। आज भी अपने घर के लिए 20 लीटर की बोतल, कोई 25 से लेकर 40 रुपये के बीच में, सीज़न के हिसाब से सर्दियों में 25 रुपये, गर्मियों में 40 से 45-50 रुपये तक की बोतल। मैं मतलब बिस्लरी की बात नहीं कर रहा, जो ऑर्डिनरी घर पे उनके घर के अगल बगल में कहीं पे रिफ़िल होता है वहाँ से लेते हैं। क्योंकि मेरे मन में रहता है कि हम किस प्रकार से पानी की सुविधा अच्छी कर सकें और पानी बचा सकें। क्योंकि मेरा मानना है कि जितना हम लोग आरओ यूज़ करते हैं, उतना जितना पानी हम पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उतना ही पानी हम वेस्ट भी करते हैं पाइपलाइन के थ्रू। वो जो फिल्ट्रेशन वाला जो पानी जाता है। मैंने सरकार को अभी निवेदन किया, राकेश जी, मैंने उनको कहा है कि आप पीने का पानी बोतल में भरकर घर पे डिलीवर कर दें। 20 लीटर सरकार पिछली सरकार कर गई है, तो उसको अगली सरकार, जो हमारी सरकार हटा नहीं सकती, उसको लागू ही रखना पड़ेगा। आप पीने का पानी उसको बोतल में भरकर, बिस्लरी जैसे पैक्ड बोतल, आप जैसे दूध जाता है वैसे डिलीवर कर दें, और अपना जो प्लांट्स हैं पीने के पानी के अलग अलग कॉलोनीज़ में लगा लें। और ये पीने का पानी मैं कि जैसे आप फ्री देते हैं वैसे फ्री दे सकते हैं। इसके अंदर कमर्शियल टर्म्स के अंदर होमवर्क किया है। परंतु कारण ये नहीं कि पीने का पानी तो साफ़ सुथरा हो, ये तो ज़रूरी है, परंतु उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि वो जो पानी वेस्ट होता है आरओ के थ्रू, वो बचे, वो बचाना ज़रूरी है। क्योंकि जितनी मेरी समझ में, जितना मैं ट्रैक करता हूँ, आस्ता आस्ता तो गंगोत्री की जो रेंज है वो कम हो रही है।
साल भर दर साल मैं पिछले 10 साल का डेटा देख रहा था, वो कम हुई है। उसी प्रकार से दिल्ली में हर साल, मैं माफ़ी चाहता हूँ दिल्ली से ज़्यादा संबंधित बात करूँगा, दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली में पला बड़ा हूँ। दिल्ली में लगभग हर साल आप देखते होंगे बारिशों के दिनों में जल भराव हो जाता है, उसके चलते ट्रैफिक का क्यास होता है। दिल्ली में मैंने चेक किया था 153 जगह ऐसी है जहाँ पे जल भराव होता है। मैंने पिछले साल का डेटा निकाला, कुछ कम था पिछले साल से, 100 इस बार 135 के लगभग था। तो मैंने दिल्ली सरकार से निवेदन फिर वापस से किया है कि आप कृपा कर कर जहाँ जहाँ जल भराव होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि आपके पानी का फ्लो नहीं है, वहाँ से रास्ता नहीं है, वहाँ पर आप वाटर हार्वेस्टिंग के पिट्स खोद लीजिए और ऐसा कर दीजिए ताकि वो जो पानी जो जल भराव होता है वहीं का वहीं ज़मीन में चला जाए, वनस्पति की वो पानी फिर नालों में बहे, फिर वो नालों से बहकर उसमें गंध मिलता हुआ फिर यमुना जी में जाए। उससे अच्छा है कि वहीं के वहीं ज़मीन के अंदर जाए ताकि पानी का वाटर टेबल भी अच्छा हो और हमको पानी की सुविधा भी होगी। तो मैंने इसलिए वो सब बातें आपसे शेयर करी जो प्रैक्टिकल है। और ये विथ चेंज ऑफ लाइफस्टाइल हमको कुछ कुछ चीज़ें हमको बदलनी पड़ेंगी, हमको अपने लाइफस्टाइल में भी कुछ बदल लाने पड़ेंगे। मतलब जब मैं लाइफस्टाइल की बात करूँ तो पर्सनल लाइफस्टाइल में, जिसके मैंने आपको पीने का पानी की बताई, मतलब पीने का मैंने तो मेरे आज घर पे मीडिया वाले आते हैं तो उनको पूरा ग्लास पानी पीने को कभी नहीं मिलता। कहते सर जी कम क्यों देते हो? मैं कहा और जरूरत है और ले लो, कोई कमी थोड़ा है, पानी की कमी नहीं, परंतु पूरा ग्लास पानी कभी पीने को नहीं मिलेगा आपको, आधा जब पौना ग्लास मिलेगा, आपको और चाहिए और पानी पी लीजिए। तो कुछ चीज़ें इसलिए मैंने ये बातें रखी कि संत जी यहाँ पे बैठे हैं, महाराज मुनि जी यहाँ बैठे हैं, सुशील मुनि जी, ये क्योंकि अपने प्रचार प्रसार में भी इसी बात की, संयम की बात करते हैं। तो ये सब संयम से ढले हुए हमारे समाज में जिस धर्म भी की बात, जो भारतीय धर्म है, जो भारतीय जो पंथ हैं, उस पर जिसमें भी बात करेंगे उसमें संयम की बात है। और मैंने जो आपके सामने सब विषय रखे वो संयम के हैं। मैं पुनः बधाई देता हूँ, आपने ये इनिशिएटिव लिया, मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। परंतु पानी बचाना, एनर्जी बचाना, हम अपने रिसोर्सेज को कैसे कम से कम इस्तेमाल करें, हम कैसे उन पे थोड़ा ढंग से यूज़ करें, ये बड़ा ज़रूरी है। मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, मैं एक बार उनसे मिलने गया जब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। उनकी वो कुर्ता पहनते बटन वाला, यहाँ से सारा कफ वो जैसे धागे निकले हुए थे। मैंने उनकी वो फ़ोटो ले ली और मैंने वो फ़ोटो ट्वीट की। मैं कहा ही इज़ द रियल मैन हु कंजर्व्स एवरीथिंग। मैंने उनसे पूछ भी लिया था, उन्होंने मुझसे बोला तूने, मैं कहा भाई मुझे तो अच्छा लगा, ये मैसेज जाना चाहिए कि कंजर्वेशन कैसे हो सकती है, क्योंकि मैं आपसे मिलने आया था, आपसे मिलने, आपके कपड़े तो थोड़ा मिलने आया था जी, मैं तो आपसे मिलने आया था, आपके दर्शन करने आया था, आपसे बातचीत करने आया था। और मैं उसको अब अपने पे लागू करता हूँ कि जितनी हो सके हम चीज़ों का, ये जो मैंने कहा ना शुरू में, हमारा जो लाइफस्टाइल है, मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल है, ठीक है, आपका कंटेंट, आपकी सोच, आपका विचार ऐसा हो कि आपसे व्यक्ति मिलने के लिए चाह रखता हो, आपसे बात करने की चाह रखता हो, ना कि आपके कपड़ों से। ये इसलिए नहीं कह रहा कि कोई मैं ये कह रहा हूँ कि आप फटे ही कपड़े पहने, परंतु जितना हो सके रिसाइकल रीयूज़ करना सीखें उतना अच्छा है, क्योंकि आज भी रिसाइकल रीयूज़ करने से भी पर्यावरण की चिंता होगी, पानी की चिंता होगी। मैं पुनः आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। गुरबानी का वह तुक वापस से रिपीट करता हूँ, पवन गुरु पानी पिता। मैं चाहूँगा सबके सब बोले तो अच्छा लगेगा, पवन गुरु। ये समझिए, ये हमारी प्लेज होती है ना, जैसे पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर, आपके इन सुंदर विचारों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। देवी और सज्जनों, आज हमारे बीच मंच पर आसीन हैं श्री राकेश जैन जी, अखिल भारतीय सह संयोजक पर्यावरण संरक्षण गतिविधि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप मेरठ के निवासी हैं और मेरठ से एमएससी स्टैटिस्टिक्स करने के बाद विभिन्न सामाजिक कार्यों में लगे रहे। वह 2015 से 2019 तक सेवा भारती राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे। अभी
वे पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के राष्ट्रीय सह संयोजक केंद्र रायपुर छत्तीसगढ़ का कार्यभार संभाले हुए हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया सभा को संबोधित करें। आज के आयोजन के केंद्र बिंदु डॉक्टर अरविंद कुमार जी, मंच पर विराजमान पूज्य संत लोकेश मुनि जी, हमारे मित्र साथी पुराने श्री आरपी सिंह जी, मैडम त्यागी जी, उपस्थित मातृशक्ति सज्जन वृंद, मुझे जो कुछ बात कहनी थी वो बहुत सारी बातें आरपी सिंह जी ने हमारे सामने रखी हैं। 7 वर्ष पहले संघ ने पर्यावरण पर काम करना चाहिए ऐसा निश्चय किया, तो वो कौन सी परिस्थिति थी वो मैं थोड़ा आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। 4-5 प्रमुख कारण एकदम ध्यान में आते हैं। 16 जून 2013 को केदारनाथ में बहुत बड़ी जल त्रासदी हुई। 100 फुट ऊंची पानी की लहर केदारनाथ मंदिर के पीछे से आई और 25,000 लोगों से ज्यादा को अपने साथ लेकर उनकी मृत्यु हुई, जल समाधि हुई। मंदिर के पीछे आप देखेंगे तो आज एक बड़ा पत्थर दिखता है, वो आकर रुका तो मंदिर बच गए। वहां खड़ी नंदी की जो चित्र था, मूर्ति, वो क्षतिग्रस्त हुई। आद्य शंकराचार्य जी की समाधि क्षतिग्रस्त हुई। इसी तरह की घटना 5 साल बाद 2018 में केरल के अंदर हुई। पेड़ों के अंधाधुंध कटान के कारण बहुत बड़ी जल त्रासदी वहां भी आई। नदियों में पानी कम था, मिट्टी ज्यादा थी, क्योंकि पेड़ों की जो बहुत सारी उपयोगिता है, हम जानते हैं कि पेड़ हमको जीवन के उपयोग के लिए सब चीजें देते हैं। सभी प्रकार के अन्न, दलहन, तिलहन, लकड़ी, जड़ औषधियां, कपड़ा, कागज, परंतु पेड़ों के दो बहुत बड़े योगदान हैं। एक है पेड़ों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखती, और दूसरा है प्राणवायु, ऑक्सीजन। उसका कोई और स्रोत नहीं है। दुनिया के आंकड़े बता रहे हैं कि सारी दुनिया में 422 पेड़ प्रति व्यक्ति हैं। 800 करोड़ आबादी है और भारत में ये संख्या केवल 28 है, और दिल्ली और आसपास में तो और भी कम है। हम नवंबर दिसंबर में हरियाणा पंजाब के लोगों को दोषी ठहराते हैं कि वो पराली जला रहे हैं, परंतु हमारे यहाँ क्या हाल है, पेड़ ही नहीं बचे। दिल्ली के निकट एक रोहतक रोड पर नगर है बहादुरगढ़। हमारे वहाँ के जिला संयोजक जी बता रहे थे कि 2.5 लाख आबादी में 2.5 लाख पेड़ भी नहीं है। तो प्राणवायु कहां से आएगी? पेड़ों के मिट्टी के कटान के संबंध में एक बात आपको मैं जोड़ना चाहता हूं। हमने सुना है कि भगीरथ जब गंगा जी को धरती पर लाए तो भगवान शिव की सहायता ली गई। भगवान शिव ने अपनी जटाएं फैलाई। वास्तव में जो पेड़ हैं वो भी आप देख सकते हैं कि भगवान शिव की जटाएं हैं, जो पानी के वेग को कम करते हैं। यदि शिव अपनी जटाएं नहीं फैलाते तो गंगा जी का वेग इतना ज्यादा था कि वो हमारी पूरी धरती को रसातल में ले जा सकते थे। आज पेड़ों की एक समस्या है। ये पानी के ऊपर संस्थान गठित है। पानी के बारे में भी हम जानते हैं कि बहुत वर्षों से अपने देश के अंदर लोगों ने इसका अनुभव किया। 500 साल पहले रहीम कवि हुए, उन्होंने तो दोहा ही लिख दिया इसके लिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। सारे धरती के अंदर 72% पानी है। मोती तब बनता है जब वर्षा का बूंद सीप में गिरती है, और घर की रसोई बिना पानी के नहीं बन सकती। गुजरात के एक और जैन संत ने, जैन आचार्य ने एक बार कहा कि पानी की चिंता करिए, पानी आपकी चिंता करेगा। उन्होंने और एक बात कही कि नहीं तो पानी किराने की दुकान पर बिकेगा। उन्होंने 100 साल की बात कही, 100 साल नहीं लगे, सन 69 में ही पानी, बोतल बंद पानी भारत में बिकना शुरू हो गया। करोड़ों रुपए वो बिस्लरी कंपनी हमारे यहां से कमा कर ले गई। तो पानी की चिंता करनी, उसके जो उपयोग हैं अभी आरपी सिंह जी ने हमारे सामने बताए कि आधा गिलास का उपयोग करना, कुल्ला या दंत मंजन करते समय कैसे मग में पानी लेकर उपयोग करना, स्नान बाल्टी में करना, ये छोटे छोटे प्रयोग हैं। परंतु एक और बड़ा संकट पर्यावरण पर है, और वो है पॉलीथीन का संकट। मैं प्लास्टिक के बारे में नहीं कह रहा हूं, सिंगल यूज या उससे थोड़ी और मोटी पॉलीथीन। 5 चीजें संकट में हैं: जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन। पॉलीथीन आने के बाद नदी का या नहर का प्रवाह स्पीड कम हो जाती है। पेड़ की जड़ में यदि पॉलीथीन पहुंच गई तो पेड़ का विकास रुक जाता है। जमीन में यदि पॉलीथीन पहुंच गई तो जमीन बंजर हो सकती है। हमारे घर में सब्जी आती है, पॉलीथीन में हम लेकर आते हैं। 50 साल पहले तो हमारे बड़े लोग कपड़े का थैला लेकर जाते थे, आजकल हाथ हिलाते हुए जाते हैं। उसका कितनी देर का उपयोग है? सब्जी छिली, कटी, उसके बचे हुए अंश भी उसी पॉलीथीन में डालकर और हम डस्टबिन पर डालते हैं। और ये सारे पॉलीथीन बैग इकट्ठे होकर हमारे शहर के किसी आउटर एरिया में एक पहाड़ का निर्माण करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कूड़े का ढेर, डंप फील्ड, मानव निर्मित पहाड़, वो दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर है, ऐसा विश्व के आंकड़े बताते हैं। लाखों टन कूड़ा जमा है। 200 गाड़ियां दिन रात कूड़ा ढोती रहती, 100 जेसीबी मशीन लगी हैं। कूड़े का ट्रक आता है, वो ऊपर जाकर ऐसे पहाड़ पर घूमते हुए चढ़ता है, ऊपर से गिराता है, वो जेसीबी मशीन उसको दबा दबा कर और पहाड़ की ऊंचाई बढ़ा रहे। ये बहुत बड़े संकट है। पर्यावरणविदों का तो ये भी मानना है कि हम जिस ढंग से पॉलीथीन उपयोग कर रहे हैं, तो 50 वर्षों के अंदर समुद्र में जितने वजन की मछलियां हैं उतने वजन का पॉलीथीन जमा हो जाएगा। गर्म पदार्थ, दाल, सब्जी, चाय, दूध हम पॉलीथीन में कैरी करते हैं। कहीं बिल्डिंग बन रही है, मजदूर काम कर रहे हैं, दोपहर के भोजन के बाद चाय पीनी है उनको, तो वो कोई थर्मस लेकर नहीं जाते, पॉलीथीन में चाय लेकर आते हैं। गिलास का एक पूरा, 20 मजदूर हैं तो 20 गिलास लेकर आते हैं। उस गिलास के अंदर भी एक लेयर पॉलीथीन की रहती। कैंसर सीधे सीधे लाखों मोनोपॉलीथीन कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। शरीर मजबूत है तो झेल जाता है, नहीं है तो कैंसर ग्रस्त होता है। ये सभी तरफ की रिपोर्ट है। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि इन सब विषयों पर काम करते हैं। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, पॉलीथीन हटाएं। और देश भर के अंदर ऐसी जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उन संस्थाओं के अनुभव को लेकर हम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं। स्कूलों के माध्यम से, धार्मिक सभाओं के माध्यम से, युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में, और ये सब काम करते हुए आज देश के 80% जिलों तक अपनी टीम गठित हुई है 6-7 वर्षों के अल्प कार्यकाल में। परंतु अनुभव बहुत अच्छे हैं। जिनको लग गया, भामाशाह की तरह मन में भाव पैदा हो गया, वो पर्यावरण के लिए प्रस्तुत है। मैं 2-3 उदाहरण बताऊंगा। गुजरात में अभी पीछे जाना हुआ मेरा, तो कच्छ क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने वृक्षारोपण किया है, पहाड़ियों को हरा भरा कर दिया।
राजकोट के अंदर एक सद्भावना ट्रस्ट है। राजकोट के से निकलने वाली 7 सड़कों पर मीलों तक उन्होंने वृक्षारोपण किया है और दानदाता तैयार करते हैं। 100 रुपये महीना दान देने वाले से, प्रायोजक से लेते हैं और उसके नाम का पेड़ लगाते हैं, उसके नाम की पट्टी भी लगाते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, अतिरिक्त पत्ते हटाने की व्यवस्था करते हैं। वहीं पर मुझे और एक ट्रस्ट के लोग मिले, पूरी टीम उनकी मिलने आई थी। उसका नाम है गीर गंगा ट्रस्ट। उन्होंने पानी को बचाने के लिए और चेक डैम बनाने का बड़ा भारी अभियान पूरे गुजरात के अंदर किया है, विशेष रूप से सौराष्ट्र के क्षेत्र के अंदर। इसी तरह से गुजरात के बिल्कुल दूसरे कोने पर, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर, दाहोद के निकट एक गांव में जाने का मौका मिला। वहां भी एक सदगुरु फाउंडेशन काम करता है। उन्होंने तो 12 जिले गोद लिए हैं, तीनों प्रांतों के 4-4 जिले, गुजरात के 4, राजस्थान के 4 और मध्य प्रदेश के 4 जिले। सभी के अंदर पानी की अच्छी व्यवस्था करना। छोटी छोटी खेती वाले पानी के अभाव में जाकर बड़ौदा, अहमदाबाद में जाकर नौकरी ना करें, अपने यहाँ थोड़ी थोड़ी फसल करके भी वो समाज का बहुत बड़ा उपयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर इन तीनों विषयों पर काम करते हुए समाज का एक बहुत बड़ा जागरण कर रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण इस प्रकार के हम लोगों को ध्यान में आते हैं। उनकी प्रेरणा से हम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं और उसी का थोड़ा सा विषय समय की सीमा को देखते हुए मैंने आपके सामने रखा है। आज के आयोजक मंडल को, उपस्थित सभी मातृशक्ति सज्जन वृंद को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। धन्यवाद मान्यवर। इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। Ladies and gentlemen, we have the privilege of having in our midst His Holiness Acharya Sri Lokesh Muniji. He is a renowned Indian spiritual leader, writer, poet and social reformer who founded Ahimsa Vishwa Bharati to promote non-violence, peace, communal harmony and human values globally. He leads peace, education and interfaith initiatives and has travelled widely for social reform and received international peace awards. May I now ask him to please kindly address the August gathering. मंच पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित कार्यक्रम की आयोजक संस्था वाटर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भाई डॉक्टर अरविंद जी को मैं इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूँगा कि द्विदिवसीय इस चिंतन मंथन से जो नवनीत निकला है, निश्चित रूप से वो समाज और देश और विश्व के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मंच पर उपस्थित और मेरे से पूर्व भाई आरपी सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब की वाणी को प्रस्तुत करते हुए बहुत ही सुंदर अपने विचार प्रस्तुत किए। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इस धरती पर 2600 वर्ष पूर्व एक महापुरुष जिनकी जन्म जयंती आगामी कुछ ही दिनों में अप्रैल में आ रही है, भगवान महावीर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, और उन्होंने एक सठ जीव निकाय का मौलिक सिद्धांत 2600 वर्ष पूर्व दिया था। उन्हीं की वाणी का, प्राकृत भाषा का, वो सठ जीव निकाय का जो सिद्धांत है, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। पृथ्वी काय यानी उन्होंने धरती की, पृथ्वी की चिंता करते हुए और ये प्रतिपादन 2600 वर्ष पूर्व किया कि पृथ्वी किस प्रकार से सजीव है,
और उसका उपयोग के संदर्भ में मार्गदर्शन किया। उसी तरह से अपकाय, अपकाय यानी वाटर, उन्होंने धरती की बात की, उन्होंने वाटर की बात की। तेजस काय, उन्होंने एनर्जी की, ऊर्जा की, अग्नि की। वायु काय, उन्होंने हवा की। वनस्पति काय, हरियाली की। और त्रस काय, जीवित मनुष्य और पशु पक्षियों के बारे में भी उन्होंने चिंतन किया। और 2600 वर्ष पूर्व ये कहा था कि हमारी धरती माता हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, किंतु असीम इच्छाओं की, असीम लालसाओं की पूर्ति नहीं कर सकती। और उस समय उन्होंने कहा, इच्छाऊ आकाश समान अनंतिया, इच्छाएं आकाश के समान अनंत है, उसका कोई और छोर नहीं है। और अनंत इच्छाओं की पूर्ति ससीम पदार्थ नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने भोग और उपभोग के सीमाकरण का भी सिद्धांत दिया। भाई राकेश जी जानते हैं, विद्वान हैं, जैन परंपरा से हैं, अध्ययन अध्यापन है। और इसलिए उन्होंने सन्यासी के लिए 5 महाव्रत का विधान किया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो एक हाउस होल्डर के लिए, स्वस्थ समाज की संरचना के लिए उन्होंने एक ग्रस्त, सदग्रस्त के लिए अणुव्रत का विधान किया। अणुव्रत का मतलब है एक न्यूनतम आचार संहिता, उसका पालन किया जाए, जिससे कि मानव जाति का हित कल्याण भी सदे और आने वाली पीढ़ियों को हम एक अच्छी धरती सौंप करके जाए। और इसलिए भोग और उपभोग के सीमाकरण की उन्होंने बात कही। आरपी सिंह जी ने बड़े अच्छे उदाहरण दिए कि व्यक्तिगत जीवन में, और मैं समझता हूं जब तक हम अपनी लाइफ स्टाइल पे ध्यान नहीं देंगे, हम अपनी जीवन शैली पर ध्यान नहीं देंगे, और ये बात हमारे पूर्वज, मैं अपने जीवन की बात बताऊं, मेरे पिताश्री, मैं 1961 में मेरा जन्म हुआ, 65वें वर्ष में मैं चल रहा हूं। और ये बात मैं तब की कर रहा हूं, सन 71-2-3 की बात कर रहा हूं मैं आपको। छोटे से गांव में जन्मा मैं, सीमांत प्रहरी, बाड़मेर जिला, जहां बड़ी मुश्किल से, यूं समझ लो कि हर 4 साल में 3 साल तो अकाल ही पड़ता था, एक आध साल बारिश हो जाए तो हो जाए। और पानी का अभाव। तो जीवन शैली किस तरह की रही? बचपन में, जब मैं ये बात कर रहा हूं, मैं मात्र 12, 13, 14 वर्ष का हूं। खेलने में ध्यान रहता था। छोटा सा गांव था, जंगल में जाने का सिस्टम हुआ करता था, घरों में अदर फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। लोटा लेकर के लौट के आते, पिताजी हाथ धुलवाना है, मिट्टी से मांजा जाता था उसे, खेलते हुए दौड़ते हुए आए। और धुलवाते वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा, घी का अधिक उपयोग हो जाए, अधिक प्रयोग कर लें, कभी डांटी नहीं पड़ी, किंतु पानी की धार तेज कर दी, मन खेलने के मैदान में है, जल्दी जल्दी से, तो तपाक से उपालम सुनने को मिलता था। पानी जो है उसका अपव्य है। और भगवान महावीर ने जो विधान, अभी आरपी सिंह जी ने बाल्टी की बात की, और ये कभी कभी लग सकता है यार ये अभी इस जमाने में कौन सी बात है, पर बंधुओं और बहनों, जब तक हम अपनी जीवन शैली पर, अपनी लाइफ स्टाइल पर परिवर्तन नहीं लाएंगे, केवल हम कोसते रहेंगे, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। और महावीर ने, भगवान महावीर आध्यात्मिक महापुरुष तो थे ही, मनोवैज्ञानिक भी थे। मैं उस चर्चा में नहीं जाऊंगा, आध्यात्मिक चर्चा में, कि किस प्रकार से उन्होंने मेघ कुमार के मन को बदला, मन को पढ़ते हुए। पर यह अवश्य कहना चाहूंगा कि वो महान वैज्ञानिक भी थे। वैज्ञानिक क्या करते हैं? वो प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में उपकरणों के माध्यम से सत्य की खोज करते हैं। और तीर्थंकर महावीर ने अपने शरीर को ही प्रयोगशाला बना डाला, और जो कुछ उन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया वो हमारे सामने प्रस्तुत किया। और उस समय जो बात उन्होंने कही, और आज विज्ञान उस पर मोहर लगाते जा रहा है। अब विज्ञान भी मान रहा है कि पृथ्वी, पहाड़ भी कैसे घटते बढ़ते हैं,
पानी के बारे में आपको कहूं, पानी में जीव नहीं, पानी स्वयं जीव है। ये 2600 वर्ष पूर्व प्रतिपादन किया। और अभी जापान के एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने पानी पे काम करते हुए पानी को तोड़ा और उसका एक क्रिस्टल का निर्माण किया। और क्रिस्टल का निर्माण करते हुए उन्होंने प्यार, मोहब्बत, लव, करुणा, कंपेशन, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए निर्माण किया। और इतना खूबसूरत क्रिस्टल का निर्माण हुआ, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। वही व्यक्ति, वही साइंटिस्ट दूसरी बार फिर एक प्रयोग करते हैं, और वो करते वक्त उन्होंने हेट, घृणा, नफरत, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और क्रिस्टल का जो निर्माण हुआ इतना मटमैला, पानी हमारी भावनाओं तक को ग्रहण करता है। लेकिन ये 2600 वर्ष पूर्व इस धरती पर मार्गदर्शन देने वाला महापुरुष पैदा हुआ था, और उन्होंने कहा था कि ये सारे पदार्थ सीमित हैं, इच्छाएं असीम हैं, और इसलिए अगर उस सिद्धांत को स्वीकार करके जीवन शैली का हिस्सा बनाया जाता तो आज ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है, जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है, और उन्होंने तो केवल बाह्य पर्यावरण प्रदूषण ही नहीं, बाह्य पारिवारिक प्रदूषण से भी ज्यादा खतरनाक आंतरिक प्रदूषण है, और इसलिए अनेकांत का दर्शन भी दिया था। और आंतरिक प्रदूषण, अभी आरपी सिंह जी मीडिया की बात कर रहे थे, पब्लिक के व्यक्ति है, राजनीति के साथ साथ समाज सेवी भी है। भाई राकेश जी अनेकानेक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे एक राष्ट्रवादी संगठन से वर्षों से जुड़े हुए सेवाएं दे रहे हैं। और आप और हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से वैचारिक प्रदूषण, और मैं ये बलपूर्वक कहना चाहूंगा कि पर्यावरण प्रदूषण से भी अधिक वैचारिक प्रदूषण भी खतरनाक है। और सुबह उठते ही मोबाइल में जिस तरह से नफरत परोसा जाता है व्हाट्सएप फैक्ट्रियों के द्वारा, अगर उसको समय रहते नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ियां, ये बाह्य पर्यावरण प्रदूषण तो भले ही, लेकिन ये आंतरिक पर्यावरण प्रदूषण जो है वो हमारी आने वाली पीढ़ियों तक को जो है भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे के अंदर निश्चित रूप से, और हमारी भारतीय संस्कृति में अभी सनातन की बात की गई। सनातन क्या है? सनातन का मतलब है शाश्वत, त्रिकालिक, जो सदा से चला आ रहा है। और सदा से शाश्वत त्रिकालिक क्या है? वो धर्म है। वो धर्म क्या है? वो करुणा है, वो क्षमा है, वो मैत्री है, वो सद्भावना है, वो प्रेम है, वो भाईचारा है। मजहब पंथ परंपरा अलग बात है, और वो शाश्वत त्रिकालिक जो है, इन शाश्वत मूल्यों को हम जब सनातन की बात करते हैं तो मैं निश्चित रूप से साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर बहुत गहराई में जाकर के, जैसे जैन दर्शन ने बहुत सूक्ष्म में जाकर के चिंतन किया, हमारी सनातन की सारी परंपराओं ने जो है अत्यंत सूक्ष्म में, इसलिए हमारे यहाँ हेल्थ का शब्द जो है केवल अंग्रेजी के हेल्दी शब्द से नहीं लिया गया है। संस्कृत साहित्य में कहा गया स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ है। स्वस्थ कौन है? जो अपने आप में ठहरा हुआ है। तो निश्चित रूप से बंधुओं और बहनों, मैं पुनः डॉक्टर अरविंद जी को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष, पिछले वर्ष भी मुझे भाई संजय जी ने उनसे जोड़ा, विज्ञान भवन के कार्यक्रम में भी मैं उपस्थित था, और आज भी निश्चित रूप से इस प्रकार के जो प्रयास हैं वो बहुत ही हमारी एक नई विचार हमें देते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव सोच, विधायक चिंतन, सकारात्मक सोच, ये सकारात्मक विचार जो है हिमशिखा की तरह, ये विचार क्रांति ही आचार क्रांति में परिणित होती है ना। ये दो तट हैं, आचार का और विचार का। बार बार उस विचार को भावित किया जाता है, उसी को अनुप्रेक्षा कहते हैं, वही संस्कार बनता है। और एक काल की परिपक्वता के साथ विचार क्रांति आचार क्रांति में परिणित होती है। तो निश्चित रूप से ये द्विदिवसीय कॉन्फ्रेंस जो है वो उपयोगी होगी। आपके इन प्रयासों के लिए मैं सराहना करता हूँ, और हम सब मिलकर के, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूँ तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम।
हम हिज होलीनेस के बहुत बहुत आभारी हैं आपके इस सुंदर शब्दों के लिए और इस उत्साहवर्धन के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं. I now request Dr. Shweta Tyagi, Chief Functionary, India Water Foundation, to kindly give her closing remarks. Distinguished dignitaries on the dais, Shri Holiness Rakesh Muni ji, Shri Rakesh Jain ji एवं श्री आरपी सिंह जी एवं मेरे सहभागी डॉक्टर अरविंद कुमार, मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आपने अपने इतने बिजी टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला. As we gather at the conclusion of the Water Transversality Global Awards and Conclave, I have a deep sense of gratitude to all the speakers who have joined for the past 2 days with us. With almost 25 sessions and 110 speakers, it was a mammoth task which we had tried to do with a very positive intent. And I think to a level we have succeeded as well. But it could not have been possible without the support of all our partner agencies, all the speakers, all the team that of India Water Foundation that was doing at the backside. And this conclave has not merely been an event, it has been a platform for reflection, for collaboration, for partnerships and alliances. And more importantly, the interconnected water, energy, health, environment nexus, which lies at the heart of this event. At the outset, I would like to acknowledge the support and collaboration of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific region, who has been our main collaborator for this event. They have supported us. We thank the Ministry of Jal Shakti, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Power, Ministry of Heavy Industries, Ministry of Social Justice and Empowerment, and Niti Aayog for giving us their ample support for this event. We are also thankful to all our collaborators, partners, especially the government of Uttar Pradesh, Gujarat, Narmada Fertilizers and Chemicals Limited, Anandita Medicare, Indian Oil, GAIL India Limited, Meghalaya Basin Development Authority of the Government of Meghalaya, Bharat Petroleum, Delhi Metro, Air India Engineer Services Limited, Hindustan Petroleum, our institutional partners, SM Sehgal Foundation and Sulabh International, our knowledge partners, World Water Council, Global Water Partnership, IUCN, Global Alliance for a Sustainable Planet, Wetland International, Alliance for Global South Asia, ICID, UNOPS, BBC Media Action, Institute for Studies on Industrial Development, and ICARS Roorkee. I'm so sorry if I fudged a few words and I've forgotten to mention any of the speakers here or any of the partners. I apologize on behalf of India Water Foundation to them. And also, I would like to put here that India Water Foundation, through a putting people first approach, have sought to localize and implement the SDGs along with the Government of India. Our work has mainly been at the policy level, where we have tried to draft policy, review policy, and also do galvanizing and supporting in the communities who have been working at the grassroots for the past 18 years. It was our founding day as well, and as a commemoration of this event, a special postal cover was released by the India Post and the Government of India. So we are thankful to them as well. And we thank all the audience and the members present here. Thank you so much for being part of this event for the past 2 days, being here for us. Thank you so much. And now I also ask Dr. Arvind Kumar to please give the mementos to the honorable speakers, and then invite you all for a high tea outside. Thank you so much. We express our heartfelt thanks to Shri R.P. Singh, National Spokesperson, Bharatiya Janata Party. We thank Shri Rakesh Jain, अखिल भारतीय पर्यावरण सह संयोजक, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. Thank you, sir, for your presence here today. And we will be forever indebted to His Holiness Acharya Shri Lokesh Muni Ji, founder Ahimsa Vishwa Bharati.
We thank His Holiness for his gracious presence here today. I'll request them all to please join us front and center for a group photo op. With that, we conclude the day's proceedings here. We'll request you all to please kindly join us for high tea. Thank you and have a pleasant evening ahead.